तो दोबारा देखें, किसी को दिखाना तो उसको दिखाएं, और ये टेस्ट ज़रूर करें इसको, जो मैंने बताया इसको टेस्ट ज़रूर करें। और ख़ास तौर पे मैंने आपको बताया था कि भाई आज का दिन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपने मौका दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके कारण ये है कि आज हमारे पिताजी का जन्मदिन भी है, तो उनको एयरफोर्स से रिटायर हुए, वो इंडियन एयरफोर्स में थे, रिटायर हो गए, अभी कोलकाता में रहते हैं। तो उनको जब मैं ये बताऊंगा कि आपने हमें मौका दिया आपके बीच आने का, तो उनको बड़ी खुशी मिलेगी। तो खैर ये यहाँ पे हम अपना वार्तालाप ख़त्म करते हुए, ये कुछ किताबें हैं जो हमने लिखी, उनमें जो मुख्य किताबें हैं वो सर आपके लिए है एक सेट। देखिए जो सारी किताबें हैं ये विश्वरूप.com में जाएंगे तो ये PDF इसका फ्री डाउनलोड है वैसे भी, राइट। तो यहाँ पे हम इसको समाप्त करते हैं, कोई सवाल हो तो, अदरवाइज इट इज कंप्लीट। Hello sir. Yes. I respect your pathy very much, and for lot of this I am not agree with you. Yes, yes. The reason may be different because you are from different pathy, I am from different pathy. Yes. But you are telling that high temperature is beneficial for the patient, as per your opinion. I am getting it correctly or not? Yeah. That is in the water immersion, hot water immersion we call. No, you told that high temperature is beneficial for the patient. It kills the bacteria, it kills the virus. It kills the virus Diseases, it kills the diseases. Yes, High temperature, you are telling its natural body immune. But I am not agree, very respectfully, I am not agree, because normal temperature is good for body and high temperature damages the major part of the brain. Brain is like in a layman term, मैं हिंदी में बोलता हूँ ताकि सबकी समझ में आएगा, कि जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है ये हमारे ब्रेन को डैमेज करता है। अगर हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है, 41, 42, 43 और लाइक दिस, तो ये हमारे ब्रेन के जो मेन सेंटर्स हैं, हमारे ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर है, हमारे ब्रेन में एपेटाइट सेंटर है, हंगर सेंटर है, सेटाइटी सेंटर है, ये जो हमारे ब्रेन के मेन सेंटर्स को डैमेज कर देता है। और ऐसे पेशेंट हैं जिनको कि टेम्परेचर को हम किसी कारणवश मैनेज नहीं कर पाए, उनका हाई टेम्परेचर रहा, उसके बाद फॉर होल लाइफ वो जिंदगी में अपंग हो गए, उनके हाथ काम नहीं कर रहे, पैर काम नहीं कर रहे, समटाइम दे गॉट डाइड। So at the view of temperature, very respectfully, I am not agree with you. Number one. Number two, you are telling that आप जो कह रहे हैं कि आप सारे कैंसर का मैनेजमेंट आप इससे कर देंगे, अपने जो पैथी है इससे, I am not agree. As per your opinion, all the cancer hospitals should be stopped, should be closed. I am not agree with this because there are different type of cancers. And for every cancer there is different treatment. For preventive measure, I agree with you. A patient should not get the cancer, should not develop the cancer. For it is okay. Your preventive diet recommendation all are very good. But for the treatment part of view, it is not effective at all. The person who is having kidney failure, by this your therapy, what you are telling, basket therapy, they are not going to be benefited. For initial stages, may be benefited. For the patient who recommended for kidney transplant, there is no way out except kidney transplant. Only kidney transplant is the answer for that. If you are having any literature for the patient who got recommendation for kidney transplant and you have cured them, kindly let me know. Number two. Sir, let me answer these two. Yes, please. Yeah. I am having so many queries, so I will ask you one by one, please. Please answer. Ayurvedic College, Tana Ayurvedic College is one of the oldest college of India, Ayurvedic College. सबसे पुराना कॉलेज है, 1898 में बना है। तो पिछले 6 महीने से हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आ रहे हैं,
हमारे हॉस्पिटल में डायलिसिस के पेशेंट ही आते हैं, जो दोज हु आर ऑलरेडी ऑन डायलिसिस, 3 डायलिसिस, 2 डायलिसिस हफ्ते में, 1 डायलिसिस हफ्ते में, तो वही आते हैं। तो ऐसे पेशेंट अगर इस टब में ऐसे बैठते हैं, डाइट को ऐसे चेंज करते हैं और ऐसा अगर 100 दिन तक करते हैं, क्या उनकी डायलिसिस छूट जाती है? दैट इज़ अ मेजर क्वेश्चन, राइट? सो दे डिड दैट ऑब्जर्वेशन स्टडी एंड अभी 2 दिन पहले उन्होंने रिपोर्ट निकाली, द रिपोर्ट सर, कि 75% ऑफ द पेशेंट, मतलब 100 पेशेंट का ही उन्होंने लिया था बैच, 75% ऑफ द पेशेंट, दोज हु कुड डू फुल्ली ऑल दिस थिंग्स, दे गॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम डायलिसिस। अच्छा, उनका सारे का डेटा का मैंने आपको यहाँ पे लिंक दिया था शुरू में, bishrup.com/research, उसमें जाके वो सारे डेटा और वो सारे पेशेंट्स, उनकी डिटेल्स, बिकॉज मेनी ऑफ द पेशेंट, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर फ्रॉम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान, ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे स्टडी में थे, जो स्टडी उन्होंने की है। सो उनकी जो हिस्ट्री है कि वो डायलिसिस पे थे, दैट इज़ वेरी मच, वो तो निकल सकता है, क्योंकि वो डायलिसिस में जितनी बार जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, वो सब कुछ लिखना पड़ता है, और अब डायलिसिस में नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो कैन बी फाउंड आउट। सो वो सारे डेटा सर मैं आपको लिंक में है, यू कैन जस्ट डाउनलोड राइट नाउ इफ़ यू वांट, bishrup.com/research। तो ये सुनने में लगता है कि अभी तक टिल नाउ, आज तक डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट का कोई और तरीका था नहीं, लेकिन अब है। और ये जो हॉट वाटर इमर्शन है, ये कोई मेरा इन्वेंशन नहीं है सर, ये आयुर्वेद में ऑलरेडी है, और मॉडर्न लिटरेचर में भी इसके जो रेफरेंसेस हैं, वो किताब मैंने ऑलरेडी दिया है, 360 डिग्री पॉस्चरल मेडिसिन, दिस इज वन। तो मैं आप सबको या आपको सर इनवाइट करता हूँ, आप हमारे हॉस्पिटल आइए, वहाँ लाइव पेशेंट हैं, दोज हु हैड बीन ऑन डायलिसिस फॉर many years, 3 years, 4 years, 5 years, but now they are living here in our hospital for 1 month. They did not go for a single dialysis. Number one, symptomatically also they are, and clinically they are very very stable. तो कभी भी आप एक बार आके देखिए, हमारे जयपुर हॉस्पिटल है, हमारा डेराबस्सी में है, तो इट रियली वर्क्स। और हम तो ये बोलते हैं, हमने सारे पेशेंट को ये बोला कि आप ये थेरेपी एंड डाइट स्टार्ट कर दो, बिकॉज इट इज सेफ। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट इज सेफ। अगर आपके पैरामीटर कम होंगे, डॉक्टर अपने आप बोलेगा डायलिसिस कम करने का। आई एम नॉट सेइंग कि डायलिसिस कम करो, ट्रांसप्लांट मत जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ ये खाना ऐड कर दो एंड यू गो फॉर हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी एंड लेट द क्लिनिकल योर रिफ्लेक्शन डिसाइड आपको अगला डायलिसिस कब जाना, वो हम नहीं डिसाइड करेंगे, लेट द योर डायलिसिस सेंटर डिसाइड। तो इस तरह से है। तो ये इट इज़ वेरी न्यू डेवलपमेंट। ये जो ऑब्जर्वेशन स्टडी का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ये भी 2 दिन पहले हुआ है, राइट? सो आई विल शेयर विद यू, और लिंक में शेयर है, bishrup.com/research में जाएंगे इसी वक्त, तो ऑलरेडी वो पूरा दिया, 26 पेजेस हैं वो, राइट? तो दिस इज वन। दूसरा सर, तो ये एक, मैं तो ये बोलता हूँ, इफ इट हैपन्स इट इज़ अ बिग उपलब्धि है ये, लेकिन ये हो रहा है। वो जो 100 लोग हैं वो जिंदा हैं, लेकिन ऐसे 1000 पेशेंट से ऊपर है हमारे पास, लेकिन 100 स्टडी में लिए गए थे। 100 जब स्टडी शुरू हुआ था, एट दैट टाइम जितने पेशेंट थे वो स्टडी चलता रहा, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। कि ये तो बस 100 दिन तक पेशेंट रहेंगे तो क्या होता है, अब 100 दिन के बाद क्या होता है, वो इट इज़ कंटिन्यूइंग, वो चलता रहेगा, राइट? हमने आयुष यूनिवर्सिटी, फिर IIT कानपुर, इन सबको भी इन्वाइट किया था, दे हैव ऑल्सो कम। आपको भी इन्वाइट करते हैं, आप भी आइए, राइट? आप सबको इन्वाइट करते हैं, आप आइए, देखिए। किसी भी बीमारी का इलाज सिंपल भी हो सकता है, ठीक भी हो सकते हैं उसमें इंसान, ये भी एक बात। दूसरी बात सर, आपका पहला क्वेश्चन फीवर का था। फीवर पे मान लो टेम्परेचर किसी का आ गया 101, 102, 103, 104, 105, 106 तक भी हमारे पेशेंट में आया है, अमंग आवर पेशेंट, और हमने अपने पेशेंट को पैरासीटामोल किसी को भी नहीं दिया, राइट? जो तो पैरासीटामोल लेते थे तो हमारे फिर पेशेंट के उससे वो हट जाते थे, देन दे आर मैनेजिंग देमसेल्फ, बट हमने नहीं रिकमेंड किया। वाई सर, क्यों नहीं रिकमेंड किया? मैंने उसको बिफोर, बिकॉज वी हैव ए टीम ऑफ डॉक्टर्स, हमने तो PhD किया, आई कैन नॉट रिकमेंड इवन ए सिंगल मेडिसिन, बट आवर टीम कैन। हमने पूरे दुनिया में फीवर बुखार पे जितने ट्रायल हुए हैं, वो सारे ट्रायल हमने इकट्ठे कर लिए। वो सारे ट्रायल हमने एक किताब में डाल दिया सर, वो किताब आपके पास है, डेल्टा 72 नाम है उस किताब का, अभी भी देख सकते हैं। दुनिया में जितने ट्रायल हुए हैं फीवर के, फीवर अगर बढ़ा रहे वर्सेस फीवर को घटाने के लिए पैरासीटामोल ले ले, दो ही चीज़ तो कर सकते हैं। फीवर ज़्यादा है किसी का, आप कम करें या ना करें, कम करने के लिए दवाई दें या ना दें, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। तो जिन लोगों ने फीवर में दवा दे के उसको कम किया वर्सेस जिनको दवा दी नहीं या उन्होंने लिया नहीं और फीवर को बढ़े रहने दिया, तो अंत में रिजल्ट क्या होता है? तो वो रिजल्ट कंसिस्टेंटली सर ये बोल रहे हैं कि फीवर इज बैड डेफिनेटली, बट फीवर में दवा लेके कम करना इज वर्स,
एंड ऑल द ट्रायल्स अभी है सर, डायबिटीज डेल्टा 72 किताब निकालें, सारे ट्रायल जब से पिछले 50 साल के सारे ट्रायल हमने इकट्ठे करके टेबुलेटेड करके दिए हुए हैं। तो नंबर वन वी गो बाय द ट्रायल्स, पहली बात। दूसरी बात सर, MBBS की किताब में हमने पूरा छान मारा, आई डिड नॉट डू MBBS बट हमने छान मारा, कहीं भी ये रिकमेंडेड है क्या कि ये लिखा है कि अगर फीवर होगा और पैरासीटामोल लेंगे तो फीवर डाउन हो जाएगा, बट क्या उस पेशेंट की जीने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे या उसकी बीमारी खत्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे? द आंसर इज नो। उसका आराम मिल जाएगा डेफिनेटली, बट उसका रिस्क कम होगा। देयर इज नॉट अ सिंगल ट्रायल विच सेज रिस्क विल बी रिड्यूस, नो। पैरासीटामोल लेने से टेम्परेचर घटता है बट रिस्क ऑफ सीजर घटता है क्या? आंसर इज नो। वो सारे ट्रायल हैं सर, अभी हैं, अभी खोल सकते हैं। तो ये 2 सवाल का जवाब सर। तीसरा सर, नहीं सर, बात ये है कि जो फीवर के बारे में हम बोल रहे हैं, इट इज बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू सम अटैक। यस सर। So, but high temperature is damaging for the brain. True, sir. It damages brain. True, sir. Number one. Number two, you are telling that paracetamol is not helping. Absolutely correct to reduce the infection. But it is. But with the paracetamol, we are given other drugs to kill the infected agent. So with paracetamol and those medicines, it helps, and a lot of patients in the medical science were recovered with the paracetamol and other treatment. Yes. So we are not giving only paracetamol. Yeah. We are giving other medicines also to kill the virus, bacteria, protozoa, fungus, whatsoever it may Yes, be. yes. So only paracetamol. You are taking very selected example. Take the example in totality. A person is having fever due to what? It is due to some disease. Yes. So we are reducing the temperature and we are killing the causative agent also. So in such condition, if you will give only paracetamol, definitely it will not work. But with that, if you will give other killing agent, it will work. So recommendation is that let the temperature go rise. I don't think it is correct recommendation in present scenario. I may be correct, may not be correct. Your pathy may correct, but it doesn't match with our pathy. So with temperature, we should maintain the normal temperature, and you are also reducing the temperature by keeping the patient on some water or kind of thing. We also recommend the ice fermentation, tap water fermentation, keeping the body cool. So these are the natural methods. Yes, yes. And with that, there are the medical methods. So this temperature part, I think more work is required to be done. Right, sir. And for the kidney patient, Yes. regarding the kidney patient, the transplantation is recommended for the patient whose kidney got damaged up to 95%, more than 95%, then the transplantation of the kidney is recommended. Right, sir. So the damaged part, do you have any example? The damaged part got regenerated. Yes, yes. It is not like this. I'll give you example, sir. So, for the dialysis part, I agree. This is because you are giving the bathtub, so it may help in the reducing the toxic substance, maybe. But when the original part is not working, the kidney, which is the reproductive mechanism of the body, so for that part, I don't think it will work, and it will increase the life of a patient, or it will help. And you are giving the coconut water for the patient, of the kidney patient. For the kidney patient, potassium is already high. Coconut water is high potassium water. So I think it should not be given. Normal water and appropriate potassium should be given. Right. Sir, इसमें for the lot of things are there. It's like there is going very fast in my mind because bad things are different. True, sir. And regarding the diabetes, you are telling the diabetes, the person who are dependent on insulin. So insulin, if a person is dependent on insulin, means pancreas is not working. Pancreas is not working. So if pancreas is not working, so we are giving outside insulin. Outside So in such condition, how you will manage with the local methods? It is beyond my knowledge. I'll explain, sir. Sir, the same question before the observation study, the team asked from the medical college that the damaged kidney cannot be revived, and how will know it is revived. So for each of the patient, we do the DTPA scan
before when they start, and DTPA scan after 3 months or about 100 days. And when you see both the scan together, sir, so the imaging can clearly see the difference, the growth of those images I can share with you. Right? And this why we have to take the DTPA, just to address this question which we have started taking in last 6 months. So वो DTPA स्कैन का रिकॉर्ड इसीलिए है और वो दिया जा सकता है, नंबर 1. नंबर 2, सर यस सर, ये पैरासीटामोल इज़ ओनली आंसर टू रिड्यूसिंग फीवर, बट यस एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, उससे यू आर कंट्रोलिंग द वायरसेस या पैथोजेंस, और उसको रिलीफ देने के लिए आपने पैरासीटामोल भी दे दिया. सो दैट इज़ 1. लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि जो गांव में रहता होगा या जिसके पास दवाई नहीं है वो क्या करेगा, तो वो ये कर लेगा. दैट इज़ हाउ वी आर एड्रेसिंग, राइट. तो जो डॉक्टर के पास है तो वो कर लेंगे, जो वो बता रहे हैं, जो है ही नहीं कि कोई किसी के पास गांव में है तो वो ऐसे कर लेंगे. दैट इज़ हाउ. अब इंसुलिन का तो हम हमेशा पेशेंट को बोलते हैं यू बी ऑन दिस डाइट. अगर आपका इस डाइट से ब्लड शुगर घट रहा है तो इंसुलिन को अकॉर्डिंगली आप टेपर डाउन करो. दैट्स व्हाट आई वी से. और अगर नहीं घट रहा तो टेपर डाउन मत करो. हमने सर ये देखा बाय 3rd डे इंसुलिन दे नीड टू टेपर डाउन बाय अबाउट 40 to 60%. वो मे बी इसलिए कि इंसुलिन बॉडी ज़्यादा नहीं बना रही है, लेकिन ये डाइट कम इंसुलिन खर्च करती है इसलिए. सो हो सकता है कि इंसुलिन बॉडी की कैपेसिटी कम हो गई, वो कम ही रहेगी, लेकिन ये डाइट को कम इंसुलिन चाहिए ट्रैवल करने के लिए. दैट्स वाई उस इंसान का काम कम इंसुलिन से हो जा रहा है. इंस्टेड ऑफ टेकिंग इंसुलिन 4 times a day, मे बी 1 time a day लैंटस इज़ ओके. तो इस तरह से ऊपर से सर एक जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल थिंकिंग एंड व्हाट वी सी, हमने 250 mg पर डेसीलीटर का लिमिट रखा है. उसके ऊपर कोई आपको यू हैव टू एड्रेस इट, बट नॉर्मली वो 150 या 200 तक भी होता है, इसीलिए भी इंसुलिन ज़्यादा लेना पड़ता है. तो दैट इज़ अगेन कैन बी वन रीज़न. तो बट वी से ऑलवेज स्टार्ट विद द डाइट. आप डाइट से शुरू करो. अगर आपके पैरामीटर फर्क पड़ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली दवाई को मैनेज कर लेना. सो देयर इज़ व्हाट वी से. सो यहाँ पे ये है. यस. Thank you, Dr. Vishnu. थैंक यू. For a wonderful session. Thank you. आज भी धन्यवाद से फेलिसिटेशन सेरेमनी का मैं यही साहब से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए. मैं श्री रजनी सहलावत और डॉक्टर आर के मिश्रा से अनुरोध करता हूँ कि वो भी मंच पर काइंडली उपस्थित. बहुत बहुत बधाइयाँ सर, बहुत अच्छा दिया आपने. लड़ाई तो जारी रहेगी. एलोपैथी वर्सेस नेचुरोपैथी. थैंक यू. थैंक यू. वो डाइट वाला बेटा पीछे भी है कैमरामैन. इधर उधर वो भी है, पीछे भी है.